السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر انڈیگو طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق شمس آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران انڈیگو فلائٹ 6E816 سے پرندہ ٹکرا گیا۔ اچانک پیش آئے اس واقعے پر پائلٹ نے فوری طور پر ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو بحفاظت لینڈنگ کرایا۔ اس طیارے میں سوار 162 مسافر محفوظ رہے۔ ایئرپورٹ حکام نے بتایا کہ واقعے کے بعد طیارے کی مکمل جانچ پڑتال کی جا گئی اور تاکہ کسی قسم کی تکنیکی نقص کا پتہ چل سکے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا کی ایکس روٹ حیدرآباد۔ MLA چنتا پربھاکر کے ذریعے CMRF کے چیک تقسیم کیے گئے۔ MLA چنتا پربھاکر کی کوششوں سے CMRF چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس کی تقسیم میں سنگاریڈی حلقہ ریاست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ کونڈاپور کنڈی، سنگاریڈی ٹاؤن اور سنگاریڈی منڈل سے CMRF کے چیکس MLA چنتا پربھاکر کے ذریعے سنگاریڈی MLA کیمپ آفس میں مستفیدین کے حوالے کیے گئے۔ کل رقم 14,28,500 روپے تھی اور اس دوران استفادہ کنندگان نے MLA چنتا پربھاکر کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے کہ CMRF چیک موصول ہوئے ہیں۔ تلنگانہ کے کوڑنگل ٹاؤن میں پیش آئے قبرستانوں اور چھلے کو مسمار کرنے کے واقعے میں اقلیتی قائدین کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی جا رہی تھی۔ پٹنم نریندر ریڈی اس ریلی میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہے تھے کہ پولیس نے انہیں راستے میں روک کر گرفتار کر لیا۔ واقعے کے بعد مقامی BRS قائدین اور کارکنوں میں غم و غصہ پایا جا رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج کو روکنا جمہوری اقدار کے خلاف ہے اور حکومت پر اقلیتوں کے جذبات کو نظر انداز کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ کریم نگر ضلع کی ترقی کے لیے تمام مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے ضلع کے چیتنیہ پوری کی مندر میں مرکزی وزیر بنڈی سنجے سے ملاقات کی۔ پونم پربھاکر نے اس موقع پر کہا کہ سیاست الگ ہے اور ترقی الگ۔ منیرواگو پر ہائی لیول پل کی تعمیر کے لیے کوشش کر کے 77 کروڑ کی منظوری حاصل کرنے پر پونم پربھاکر نے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سب کے تعاون سے ہی منیرواگو پر پل کی تعمیر کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ عوام کی پرزور خواہش اور مقامی رکن اسمبلی کے عزم نے انہیں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں شکریہ کی ضرورت نہیں بلکہ سب کو ترقی کرنے کے لیے مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے کہا ہے کہ لوگوں کا تحفظ، مناسب حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کارڈن اینڈ سرچ آپریشن انجام دیا جا رہا۔ اجنور ایڈیشنل SP کاجل سنگھ IPS اور عادل آباد DSP LG1 ریڈی کی قیادت میں ضلع عادل آباد کے اچوڑا منڈل کے کیشو پٹنم میں پولیس کا کارڈن اینڈ سرچ آپریشن انجام دیا گیا۔ صبح کے اولین ساعتوں میں تقریباً 160 پولیس عہدیداروں و ملازمین اور 20 خواتین پولیس عملے نے کیشو پٹنم کا گھیراؤ کیا اور گھر گھر جا کر تلاشی لی۔ دستاویزات کی عدم موجودگی کی بنا پر 82 موٹر سائیکلیں، 18 آٹوز، ایک
मैक्स गाड़ी को आर्जी तौर पर जब्त किया। इसी तरह नारकोटिक डॉग रोमा की मदद से मंशियात की चेकिंग की गई। जिले एसपी अखिल महाजन IPS, जिन्होंने बारिश के बावजूद इचोड़ा मंडल के केशुपट्टनम गांव पहुंचने वाले लोगों के साथ कॉर्डन एंड सर्च प्रोग्राम में हिस्सा लिया, सबसे पहले ओहदेदारों के साथ गांव का दौरा किया और तलबा को तालीम की अहमियत से आगाह किया। दूसरा क्या है कि अगर एक बार केस हो जाता, अभी क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वो लोग क्या सीख रहे हैं, जो आप लोग कर रहे हो वो लोग आपसे सीख रहे हैं। आप अगर कुछ गलत आदत कर रहे हैं, किसी को गुटखा खाने की आदत है, किसी को दारू पीने की आदत है, किसी को गांजा पीने की आदत है, छोटे बच्चे भी वही देख रहे हैं, वही सीखते कि मेरा बाप ऐसा कर रहा, मेरा बड़ा भाई ऐसा कर रहा, मेरे बाप का भाई ऐसा कर रहा, मैं भी ऐसा करता। छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म के खिलाफ जारी जद्दोजहद में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब दंतेवाड़ा जिले में 71 नक्सलियों ने इज्तिमाई तौर पर हथियार डाल दिए। माहिरीन के मुताबिक ये हालिया बरसों में इस मुहिम की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार की जा रही। ये खुद सुपुर्दगी रियासती हुकूमत के मारूफ लोन वरात तो घर की तरफ लौट आओ मुहिम के तहत अमल में आई, जिसका मकसद नक्सल नजरिए से मुतासर नौजवानों को तशद्दुद की राह छोड़कर समाज और तरक्की की मरकजी धारे में लाना है। दंतेवाड़ा के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट गौरव राय ने बताया कि खुद सुपुर्दगी करने वालों में 30 नक्सलाइट्स ऐसे हैं जिन पर 50,000 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक के इनामात मुकर्रर थे। इन तमाम इनामात की मजमूई मालियत 64 लाख रुपए बनती है। उन्होंने मजीद कहा कि सभी अफराद ने सीनियर अफसरान और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के सामने हथियार डाले, जिसके बाद इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल में एक मुस्बित तब्दीली देखने को मिली। पुलिस के मुताबिक हालिया महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी कार्रवाइयों को तेज किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद नक्सल कमांडर मारे गए। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का बाज़ाब्ता मुआहदा न होने की वजह से कई नक्सलाइट्स दरबदर होकर तहरीक छोड़ने पर मजबूर हुए और उन्होंने अमन व तरक्की का रास्ता इख्तियार किया। वजीर नारा लोकेश ने CM के साथ नायब सदर CP राधाकृष्णन का उनके रियासती दौरे पर शानदार इस्तकबाल किया। नायब सदर CP राधाकृष्णन जो रियासत के 2 रोजा दौरे पर विजयवाड़ा गन्नावरम हवाई अड्डे पर पहुंचे, गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर, CM चंद्रबाबू नायडू और वजीर तालीम और IT नारा लोकेश ने शानदार इस्तकबाल किया। गुलदस्ते से उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर नायब सदर CP राधाकृष्णन ने पुलिस की सलामी ली। बादशाह नायब सदर जमहूरिया विजयवाड़ा का दुर्गा माँ का दौरा किए और वहां पर पनामा घाट में मुनक्किद होने वाले विजयवाड़ा उत्सव में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कई वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। हिंदुस्तान की खामोशी और फलस्तीन से दूरी पर सोनिया गांधी ने एक सख्त तनकीदी मजमून तहरीर किया, जो दी हिंदू अखबार में शाये हुआ। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत के फलस्तीन के मसले पर रवैये को गहरी खामोशी और इंसानियत और अखलाक से दस्तबरदारी करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि हिंदुस्तान को फलस्तीन के लिए क़यादत का मुजाहरा करना चाहिए, जो अब इंसाफ, शनाख्त, वक़ार और इंसानी हुकूक की जंग बन चुका है। सोनिया गांधी ने अपने मजमून में कहा कि हिंदुस्तान की आलमी सतह पर हैसियत एक फर्द की ज़ाती इज्जत अफजाई या तारीख़ी कारनामों पर मुनहसर नहीं हो सकती। उन्होंने फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया का हवाला दिया, जिन्होंने हाल ही में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया, जो फलस्तीन के तवील अरसे से परेशान अवाम की जायज़ ख्वाहिशों की तकमील का पहला कदम है। हुकूमत ने दिफाई शोबे से मुतल्लिक एक अहम फैसला करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ DCDS जनरल अनिल चौहान की मुद्दत कार में आइंदा साल 30 मई तक तौसी करने का ऐलान किया। वजारत दिफा ने देर गए बताया कि तकर्रियों से मुतल्लिक काबीनी कमेटी ने जनरल चौहान की मुद्दत में तौसी से मुतल्लिक तजवीज़ को मंजूरी दी है। जनरल चौहान 30 मई 2026 तक या अगले हुक्म तक महकमे फौजी उमूर के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहेंगे। उन्हें मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की एक हादसे में वफात के बाद 28 सितंबर 2022 को CDS मुकर्रर किया गया था। जनरल चौहान 1981 में हिंदुस्तानी फौज में शामिल हुए थे और अहम कमांडो स्टाफ तकर्रियों के साथ उनका शानदार कैरियर रहा। फौज के लिए उनकी मिसाली खिदमत पर उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा है कि चाहे बीजेपी कितने ही झूठ बोले या साजिशें रचे, हम पसमानदा तबकात को उनका पूरा हक दिलाने के लिए पुरअज़्म हैं। उनका कहना था कि पार्टी की जदोजहद महज सियासी नहीं बल्कि समाजी इंसाफ की असल लड़ाई है, जिसमें दलित, आदिवासी, अक़लियती और पसमानदा समाज को इज्जत और बराबर के हुकूक दिलाना बुनियादी मकसद है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में जोर दिया कि सबसे अहम मैदान तालीम है, क्योंकि यही महरूम तबकात की तरक्की का सबसे बड़ा जरिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस बात को यकीनी बनाएगी कि इन तबकात को तालीम तक मसावी रसाई मिले और इसीलिए इत्ते पछड़ा न्याय संकल्प में खुसूसी इक़दामात शामिल किए गए। उन्होंने वादा किया कि अब न सिर्फ सरकारी इदारों में बल्कि निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी रिजर्वेशन नाफिज किया जाएगा, ताकि महरूम तबके के नौजवानों को आला तालीम के मौके मुयस्सर आएं। समीर वानखेड़े की रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट और गौरी खान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में हत्तक इज्जत का मुकदमा। मशहूर साबिक एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट, गौरी खान और दीगर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में हत्तक इज्जत का मुकदमा दायर किया। मुकदमा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी मुबैना तौर पर मनफी और झूठी तस्वीर कुशी के खिलाफ दाखिल किया गया। वानखेड़े ने अदालत से 2 करोड़ रुपए हट जाने का मुतालबा किया और ये रकम वो टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को अतिया करने का इरादा रखते हैं। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सीरीज में दिखाया गया मवाद न सिर्फ झूठा और गुमराह कुन है, बल्कि इसका मकसद समीर वानखेड़े की साख को नुकसान पहुंचाना और अवाम में उनके बारे में मनफी तासर फैलाना है। वानखेड़े ने अदालत से रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट, गौरी खान और दीगर के खिलाफ मुस्तकिल पाबंदी आयद करने की भी दरख्वास्त की है, ताकि इस मुबैना बदनीयती पर मबनी झूठे और हत्तक आमेज वीडियो को मजीद नशर या तकसीम न किया जा सके। वाज़ेह है कि रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट मारूफ बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान की मलकियत है और गौरी खान उनकी शरीक हयात और कंपनी की अहम रुकन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने दौरे के दौरान बेहद खतरनाक वाक़यात का शिकार होने का सनसनीखेज़ दावा किया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के बाद ट्रंप ने इन 3 वाक़यात को गहरी साजिश करार दिया। उन्होंने इस मामले की फौरी जांच के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी को हिदायत देते हुए कसूरवारों को गिरफ्तार करने की बात कही। अमेरिकी सदर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में उनके साथ पेश आए घटिया वाक़यात उनके खिलाफ की गई साजिश का हिस्सा है, जिसमें स्केलेटर का अचानक रुकना, टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी और साउंड सिस्टम का फेल होना शामिल है। सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को खत लिखकर सभी सिक्योरिटी टेप महफूज करने और फौरी जांच का मुतालबा किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तवील और गुस्से से भरा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इन वाक़यात को तफसील से बयान किया। उन्होंने लिखा, यूएन में एक तौहीन आमेज वाक़या पेश आया, न सिर्फ एक न 2 बल्कि 3 बहुत ही घटिया वाक़यात। ये इत्तफाक नहीं था, ये यूएन में ट्रिपल सेबोटेज था। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा को नाअहल बताते हुए कहा कि ये वाक़यात उनकी तकरीर में रुकावट पैदा करने की कोशिश थी, जो आलमी मंच पर अमेरिका की छवि को दागदार करने का हिस्सा लगती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।